بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2148 ہے، اور آج ہم سورۃ المنافقون مدنیہ کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 1 تا 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، اذا جاءک، جب آپ کے پاس آتے ہیں، المنافقون، منافق لوگ، قالو، تو وہ کہتے ہیں، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ انک، کہ بلا شبہ آپ، لرسول اللہ، البتہ اللہ کے رسول ہیں، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، انکا، کہ یقیناً آپ، لرسول، البتہ اس کے رسول ہے، واللہ، اور اللہ، یشہد، شہادت دیتا ہے کہ ان المنافقین، کہ بے شک منافق ہی، لکاذبون، البتہ جھوٹے ہیں، اتخذوا، انہوں نے بنایا ہے، ایمانہم، اپنی قسموں کو، جنتاً، ڈھال، فصدوا، پھر انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، انہم، بلا شبہ وہ، ساء، برا ہے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کر رہے ہیں، ذالک، یہ اس لیے کہ بأنہم، بلا شبہ وہ، آمنوا، ایمان لائے، ثم، پھر، کفروا، انہوں نے کفر کیا، فطبع، پھر مہر لگا دی گئی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، اب وہ نہیں سمجھتے۔ ترجمہ یوں ہے، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافق لوگ جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا رکھا ہے، پھر یہ لوگ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی برے ہیں وہ کام جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہیں کہ یہ شروع میں بظاہر ایمان لے آئے، پھر انہوں نے کفر اپنا لیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، نتیجہ یہ کہ وہ لوگ حق بات سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری بات، اللہ جانتا ہے کہ آپ واقعی اس کے رسول ہیں۔ تیسری بات، اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق لوگ جھوٹے ہیں۔ تیسری بات، چوتھی بات، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ پانچویں بات، پھر یہ لوگ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ چھٹی بات، حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی برے کام ہیں وہ جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ ساتویں بات، یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہیں کہ شروع میں بظاہر ایمان لے آئے۔ آٹھویں بات، پھر انہوں نے کفر اپنا لیا جس کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔
नवी बात नतीजा ये कि ये लोग हक बात समझते ही नहीं है। बुजुर्गान मोहतरम, पिछली सूरत में उन यहूदियों का जिक्र था जिनके पास आसमानी किताब और आखिरी नबी मौजूद थे, लेकिन उन लोगों ने उससे फायदा नहीं उठाया और अपनी आखिरत तबाह कर ली। इस सूरत में अल्लाह ताला मुनाफिकों और उनके निफाक से मुतालिक वाक़ियात बयान कर रहे हैं कि उन लोगों ने भी इस्लाम की तालीमात से फायदा नहीं उठाया और उन्होंने किस तरह अपनी आखिरत तबाह कर ली। चुनांचे फरमाया कि ए नबी, जब ये मुनाफिक लोग आपके पास आएंगे तो आपसे कहेंगे कि हम तो इस बात की गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह तो ये बात जानता ही है कि आप वाकई अल्लाह के रसूल है, उसके भेजे हुए पैगंबर हैं। अब ये लोग उसकी गवाही दें या ना दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये लोग जो आपके सामने अपनी जबान से आपके नबी होने की तस्दीक कर रहे हैं, दरअसल ये लोग ऐसे नहीं हैं, बल्कि उनके दिलों में आपके नबी होने का यकीन ही नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ये गवाही देता है कि ये मुनाफिक लोग अपनी जबान से कही हुई बात में झूठे, उनके दिल कुछ और कहते हैं और जबान कुछ और कहती है। ये लोग अपनी जबान से आपके नबी होने की जो तस्दीक कर रहे हैं वो बस इसलिए कि ऐसा करने से उनके माल, उनकी जानें और अहल अयाल मुसलमानों के हाथों बच जाएंगे, और अगर ये अपना कुफ्र जाहिर कर देंगे तो मुसलमान उनसे भी जंग करेंगे, जिसके नतीजे में या तो ये कत्ल कर दिए जाएंगे या फिर कैदी बना लिए जाएंगे। इसलिए उन लोगों ने यह तरीका अपनाया है कि अपने कुफ्र को छुपाए रखें और इस इस्लामी लिबास की आड़ में वो इस्लाम को नुकसान पहुंचाएं कि जो कोई इस्लाम लाने के लिए आता है तो वो उसे इस्लाम लाने से रोकते हैं। इसी तरह जिहाद करने से भी रुकते हैं और उसकी राह में खर्च करने से भी रुकते हैं और दूसरों को भी रोकते हैं। ये मुनाफिक लोग जो काम कर रहे हैं, इस बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सबसे बुरा यही काम है। उसकी वजह यह है कि लोग जाहिरी ईमान तो ले आए, लेकिन उनके दिल कुफ्र पर ही अड़े रहे। उनकी इस हालत की बिना पर अल्लाह ताला ने भी उनके दिलों पर मोहर लगा दी कि जिसकी वजह से उनके दिल पर कोई अच्छी बात का असर ही नहीं होता और न ही कोई अच्छी बात उन्हें समझ में आती है। लिहाजा ये लोग जिंदगी भर अपनी इसी हालत यानी गुमराही पर रहेंगे। इन आयात के शान नुज़ूल के पस मंजर में एक वाक़या मनक़ूल है जिसका ताल्लुक बनी मुस्तलक से है, जिसके बारे में आप अलैहिस्सलातु तस्लीम को यह इत्तिला दी गई कि वो बनी मुस्तलक मदीने पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो आप अलैहिस्सलातु तस्लीम खुद अपने सहाबा को लेकर उनसे जंग करने के लिए निकले और उनसे जंग भी हुई, जिसमें मुसलमानों को फतह और उन्हें शिकस्त हुई। इस जंग के बाद आप अलैहिस्सलातु तस्लीम उसी जगह कुछ रोज पड़ाव डाले रहे। एक दफा एक देहाती वहां पर मौजूद एक कुएं पर पहले पहुंच गया और उसे अपने हिसार में ले लिया। इतने में एक अंसारी सहाबी भी आए और उन्होंने अपनी ऊंटनी के लगाम को ढीली कर दी ताकि वो पानी पी ले, लेकिन उस देहाती सहाबी ने उन्हें ऐसा करने से रोका, मगर उन्होंने इस बांध को तोड़कर अपनी ऊंटनी को सैराब कराया। तो इतने में वो देहाती सहाबी ने पास में मौजूद एक लकड़ी उठाई और उस अंसारी साहबी के सर पर मारी, जिससे उनका सर जख्मी हो गया। आखिरकार ये बात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपने इस मामले को हल कर दिया। लेकिन जब ये बात अब्दुल्लाह बिन उबय मुनाफिक को मालूम हुई तो उसे गुस्सा आया कि एक मुहाजिर हमारे इलाके में आकर और रहकर हमारे ही आदमी को मारता है। यही बात उसने अंसार से कही और उन्हें उकसाया कि जब मदीना वापस जाएंगे तो हर इज्जत वाला यानी अंसार जिल्लत वाले यानी मुहाजिर को निकाल बाहर कर देगा। जब ये बात हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुनी तो आप अलैहिस्सलातु तस्लीम तक इस बात की खबर उन्होंने दी। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की बात सुनने के बाद आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अब्दुल्लाह बिन उबय और उसके साथियों को बुलवाया और पूछा कि क्या तुमने वाकई ऐसा कहा? उन लोगों ने झूठी कस्में खाकर इस बात का इनकार कर दिया। तो आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने भी उनकी उन झूठी कस्मों पर यकीन कर लिया और हज़रत ज़ैद उनकी बात इसलिए नहीं मानी कि शायद हो सकता है उन्हें सुनने में कोई मुखालता हो गया हो। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह उनको ये बात पसंद ना आई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी उन झूठी कस्मों पर यकीन करके मेरी बात से सफर नजर कर लिया। उसके बाद हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि हम सफर जारी रखे हुए थे कि आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने मुस्कुरा कर फरमाया, खुश हो जाओ ज़ैद, अल्लाह ताला ने तुम्हारी सच्चाई और मुनाफिकीन के झूठ को वाज़ेह कर दिया है। फिर आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सूरह मुनाफिकून की तिलावत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला इन वाक़ियात से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।